Hello everyone. Again, we are here for nuclei. Again, law of radioactive decay. This same topic and same type of questions, but now we are going into depth and we are discussing different types of and some type critical type of examples. And now this is example third because we already discussed two examples in previous video. So now this is something new. See, a radioactive substance has a life of period of 30 days, means half life period of 30 days, means tau half is given. Tau half is 30 days. Now first question is very simple, decay constant, or it is also known as the disintegration constant. So this is about the disintegration constant. So see, tau half 30 days. Now actually we want to find the disintegration constant, decay constant. So obviously relation is very simple, tau half is equal to what? 0.693 upon lambda is equal to 30. So lambda is equal to 0.693 divided by 30, and this is lambda, and 30 actually it is given in terms of day. So when we solve or when we simplify this, so obviously we will get lambda is equal to 0.0231 per day. Lambda is equal to this 0.0231 per day. Now this is the solution of first question. Obviously it is very simple. Now see the second one, that is time taken for 3/4 of the original number of atoms to disintegrate. So 3/4 of the atoms disintegrates. So obviously remaining जो होगा वो कितना होगा, because वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, because n is equal to n naught e raised to minus lambda t, और एक दूसरा भी फार्मूला है n upon n naught is equal to 1 upon 2 raised to n. ये देखो नया फार्मूला आया, ये हमने एक्चुअली ग्राफ से, अगर आप ग्राफ देखो n वर्सेस t ग्राफ, number of undecayed nuclei versus time, obviously graph is hyperbola, decreasing because exponentially decreases, and obviously formula is this n is equal to n naught e raised to minus lambda t. And if we draw the graph of this equation, and if we take the different values of time t at a given instant, so for half life, then double half life, then अगर हम ऐसे increase करते जाएंगे, then finally we will get this general equation. This is very simple equation. Actually यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, where n is equal to, जो n है वो क्या है, तो भाई एक्चुअली n का जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी सिंपल है कि भाई टाइम टेकन अपॉन हाफ लाइफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि भाई ये हमें n कैसे मिला, तो वो भी हमें ग्राफ से ही मिलता है. तो n इज इक्वल टू टी अपॉन टाउ हाफ. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ. ओके, अब इसको धीरे धीरे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं. अब क्वेश्चन में ऐसा है कि देखो, टाइम टेकन फॉर 3/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स टू डिसइंटीग्रेट. 3/4 ऑफ द ओरिजिनल एटम्स, और वो भी कैसा है, डिसइंटीग्रेट. तो हमें तो कौन सा चाहिए, अनडिसइंटीग्रेटेड, बिकॉज n जो है n नॉट, n नॉट इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इनिशियली, n इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट अ गिवन इंस्टेंट. तो यहाँ पे तो डिसइंटीग्रेट की बात की गई है, नॉट अनडिसइंटीग्रेट और अनडिकेड. डिसइंटीग्रेट इट मीन्स डिकेड एंड अनडिसइंटीग्रेट इट मीन्स अनडिकेड. तो यहाँ पे तो जो n और n नॉट है इट इज़ अनडिकेड एट ए डिफरेंट इंस्टेंट. तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमें 3/4 तो देखो डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कितना होगा, तो 1/4.
So obviously from the question it is very clear कि n is 1/4 of n naught. N is because 3/4 is already decayed. So undecayed nuclei at a given instant will be 1/4. So 1/4 n naught. And obviously ऊपर वाला फॉर्मूला देखने के बाद तो थोड़ा सा पता चल जाता है कि अब इसको हम कौन सी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. देखो 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 होल स्क्वायर एंड n नॉट को मैंने डिवाइड में ले लिया है. देखो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है अभी. तो इफ वी कंपेयर तो हमें कुछ यहाँ से कुछ बेनिफिट हो सकता है. और एक्चुअली हमें क्या चाहिए वो भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई टाइम टेकन फॉर 3/4. तो टाइम टेकन फाइंड आउट करना है. तो देखो हमारे पास n आ गया है 2 बिकॉज हियर n तो हियर 2. गिवन टाइम तो वो तो हमें चाहिए. और हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ है हमारे पास. तो आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाएगा. देखो ये तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें ही इसी फार्मूला में. तो हियर n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 ये रहा. गिवन टाइम वो तो हमें फाइंड करना है एंड दिस इज 30. तो वेरी सिंपल t इज इक्वल टू 60 डेज. तो देखो टाइम टेकन जो बोला गया है दैट इज 60 डेज. चलो फटाफट अभी हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. मीन्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. टाइम टेकन फॉर 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स टू रिमेन अनचेंज्ड. अनचेंज की बात है तो ये अनचेंज वाला ही है बिकॉज पहले वाले में क्या था डिसइंटीग्रेट था. तो उसमें से हमने अनडिसइंटीग्रेट फाइंड किया था. Now it is already given कि भाई it is remain unchanged. It means it is undisintegrated, undecayed. ये तो already दिया है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये तो कि भाई 1/8 तो n by n naught is equal to 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा पावर. अभी हमें देखना पड़ेगा कितना आएगा. तो 1/8 है वहाँ पे. देखो पावर पता चल गया हमें क्या है 1/2⁻³ ऑब्वियसली 2 क्यूब क्या होगा 8 होगा. चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. बहुत ही आराम से आ गया इसमें तो कि भाई n हमारे पास आ गया है. हाफ लाइफ हमारे पास है. तो देखो हियर सो हियर n इज इक्वल टू t/tau हाफ एंड n इज 3. n 3 है ये रहा n 3. हाफ लाइफ इज obviously 30 days. It is given in the question. So final answer will be t is equal to 90 days. Okay? Thank you. Yes. So now fourth question. Determine the amount of polonium necessary to provide a source of alpha particles of 10 Curie strength, Curie Ci strength. The half life of polonium is given 138 days. क्वेश्चन बहुत सिंपल है और पोलोनियम की बात है यहाँ पे. सी ऑलरेडी टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज गिवन 10 Curie. 10 Curie. अब देखो क्यूरी को पहले तो देख लेते हैं और डेटा क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं. हाफ लाइफ इज गिवन 138 days. दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम. सो पोलोनियम है गिवन सब्सटेंस और मीन्स एलिमेंट. और आगे देखते हैं कि क्या होगा. तो देखो 10 Curie. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्यूरी किसके लिए यूनिट यूज होता है. तो इट इज़ फॉर द रेडियो एक्टिविटी. इट इज़ फॉर द एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स उसको हम dN/dt भी बोल सकते हैं. R मीन्स कैपिटल R ऐसा भी सिंबल हम यूज करते हैं. सो दैट इज R एंड दिस इज 10. Yes, sorry. This is 10 millicurie, and so obviously here R is equal to 10 millicurie. Now, first of all, we will find the relation between the Curie and disintegration per second or Becquerel. So 10 milli. So 10 milli it means 10 into 10 raised to minus 3. Now 1 Curie.
एक्चुअली 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और बैकबैरल ये भी यूनिट यूज होता है, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं डीके पर सेकेंड और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्यूरी एंड बैकबैरल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. So 3.7 into 10 raised to 10. So obviously we will multiply here 3.7 into 10 raised to 10. So finally this we will get into decay per second. If we simplify this, so obviously we will get 3.7 into 10 raised to 8 decay per second. Decay per second. Obviously 10 minus 3 7 and plus 1 so 8. So 3.7 into 10 raised to 8 decay per second. This is the activity or radioactivity or disintegration rate. इसको disintegration rate ऐसा भी बोला जाता है dN/dt. ओके, सो इतना तो पहुंच गए हम. अभी R का फॉर्मूला है R is equal to n lambda. R is equal to n lambda. ओके, डिटरमाइन द अमाउंट. तो हमें n तो चाहिए, n तो फाइंड करना है, तो लैम्बडा होना चाहिए. ऑब्वियसली लैम्बडा तो है हमारे पास, बिकॉज हाफ लाइफ इज गिवन, तो वहां से लैम्बडा आ जाएगा. सो R is equal to n into 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ हाफ. R हमारे पास है ऑलरेडी, टाउ हाफ भी है हमारे पास. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें n मिल जाएगा. सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. इसका आंसर आएगा 6.37 into 10 raised to 15 एटम्स. तो चलो भाई n तो आ गया है, यहाँ से हमें n फाइंड करना था, वो इधर आ गया है. रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर गिवन हियर, सो वहाँ से मिल जाएगा. चलो n हमारे पास आ गया है. अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं. कुछ ऐसा बताया गया है कि डिटरमाइन द अमाउंट. अमाउंट का मतलब हम यहाँ पे मास फाइंड करेंगे. तो ऑब्वियसली मास ऑफ एटम्स, तो देखो यहाँ पे 210 तो दिया है ऑलरेडी एटॉमिक मास. तो हम ऐसा बता सकते हैं कि भाई हमारे पास एवोगैड्रो नंबर तो है, तो कि भाई मास ऑफ नियरली इक्वल टू 6 into 10 raised to 23 एटम्स इज 210. ये रहा यहाँ पे 210 तो है हमारे पास, और इसको किलोग्राम में कर देते हैं तो 10 raised to -3 kg. मीन्स ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है एवोगैड्रो नंबर. तो 6 into 10 raised to 23 एटम्स का मास नियरली ऑब्वियसली एटॉमिक मास इतना होगा. हमारे पास एटम्स कितने हैं, तो ये रहे. तो मास ऑफ 6.37 into 10 raised to 15 एटम्स. तो अब उसका मास कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल सा इक्वेशन है, और मास को अगर हम यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे तो देखो इक्वेशन कुछ ऐसा बनने वाला है कि 6.37 into 10 raised to 15 into 210 into 10 raised to -3 अपॉन 6 into 10 raised to 23. तो ऐसा कुछ इक्वेशन बना है हमारे पास. इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली इक्वल टू आंसर मिलेगा 2.22 into 10 raised to -9 kg. तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर. तो बाकी सब तो देखो, ये एक्चुअली हमें ये देखना था कि कॉन्सेप्ट को हमने कैसे यूज़ किया. क्यूरी को पहले हमने, मिली क्यूरी को तो पहले क्यूरी कराया. क्यूरी करने के बाद हमने क्या किया, उसको बैकबैरल या डीके पर सेकंड में या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया. बाद में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है. एक्चुअली दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी. वहाँ से हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए. अब एक मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर में हम देखते हैं तो 210 एटॉमिक मास है, तो उतना मिलेगा हमें मास. तो इतने एटम्स के लिए कितना होगा, और बाद में हमने उसका सिंपल इक्वेशन है तो उसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पे किया है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे अलग अलग फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये मास वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, थैंक यू सो मच.